Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. And today we have to start the third unit of your second year, and which is magnetic effect of the unit name is magnetism and matter. It's okay. And this is chapter 4, and it is chapter 4 is moving charge and magnetism, and this is first topic, magnetic field. In the earlier classes we have also discussed about the magnetism and what is magnetic field, but today we shall also focus on some the previous points. As you know, the word magnetism is origin from Magnesia, because in this country a rock is found in which some of the material are obtained which have some magnetic properties, means which have some attracting properties. It's okay. And let us start the first of all from the magnetic field. Similar as electric field, a magnetic field is also found. Whenever a magnet is placed, a space around the magnet where a magnetic field is experienced is called, or a magnetic force is experienced, is called magnetic field. It's okay. The magnetic field is a space around a conductor carrying current on, or the space around a magnet in which magnetic effect can be felt. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसी मैग्नेट के या करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड वो स्पेस होता है जहाँ कोई दूसरा मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स फील करता है. ओके. द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर्स एज सुन एज करंट इज स्विच ऑफ. यानी कि अगर कंडक्टर में करंट को हम बंद कर दें तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिसअपीयर हो जाता है. इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं. इट्स ओके. जैसे आप जानते हैं कि जब कहीं चार्ज हो तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. इट्स ओके. मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल B एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स ओके. The magnetic induction or magnetic density, it means magnetic field is also called magnetic induction or magnetic field density. It's okay. It has several properties. The net since magnetic field is a vector quantity, then the sum of the magnetic field, it means if we find out the magnetic field due to different magnets, the vector sum of individual magnetic field gives the net magnetic field. It means it also follows the law of superposition principle. It means the sum of the individual vectors gives the resultant magnetic field at a point. It's okay. Now, what is the definition of one Tesla? Since Tesla is the unit of magnetic field, then the definition of 1 Tesla is defined by the force F is equals to QVB sin theta. It's okay. QB sin theta. QVB sin theta से अगर हम B को सब्जेक्ट करें तो B इक्वल्स टू मिलता है हमें F अपान QV sin थीटा. ओके. अगर Q यूनिट हो, 1 हो, वेलोसिटी भी यूनिट हो, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर हो, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1. ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज़ 1 हो जाएंगी, यानी कि B जो है 1 के इक्वल हो जाएगा. ओके. इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई चार्ज मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ये फार्मूला आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला है जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है. तो B इज इक्वल्स टू F अपान QV साइन थीटा होता है. इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर टेस्ला को डिफाइन करें, 1 टेस्ला को, तो 1 टेस्ला को फोर्स का यूनिट हो जाएगा 1 न्यूटन, Q का वैल्यू 1 कूलम
वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, और मैंने बताया ये आपको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, जो बी और बी के बीच, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो हमें रिजल्टेंट जो मिलेगा वो 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 मिलेगा। तो हम अगर इसको पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर पर सेकेंड। इट्स ओके। तो अगर हम इसके बिहाफ पर डिफाइन करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम while moving at right angle to a magnetic field with a velocity of 1 meter per second. 1 meter per second experiences a force of 1 Newton. According to this hypothesis, the definition is this. Okay? अब डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में फोर्स का डायमेंशन होता है आपका ml t to the power -2, चार्ज का होता है at और वेलोसिटी का होता है lt इनवर्स। इन सबको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा m a to the power -1 एंड t to the power -2। इट्स ओके। अब बात यहाँ पर एक और आती है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टैटिक चार्ज की वजह से नहीं होता है, वो मूविंग चार्ज की वजह से होता है, जबकि स्टैटिक चार्ज की वजह से जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो ये v है, सॉरी जो ये चार्ज q है, ये स्टैटिक नहीं होना चाहिए। यदि इसको रेस्ट में ला देंगे, वेलोसिटी 0 कर देंगे, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं होगा। इट्स ओके। नाउ अब हमें यहाँ पर पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आप 10th में भी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर भी हमें पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टर्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये बताया कि जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इट्स ओके। यानी कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टर्ड ने हमें बताया, और वहीं से हम लोग ये जान गए कि जब कहीं भी करंट होगा तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। इसीलिए इस चैप्टर का भी नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इट्स ओके। दिस इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि आपका जो मेन टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर एंड कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इट्स ओके। यानी कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और ये बात सबसे पहले बताया ऑस्टर्ड ने, और उसको एक वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया। ठीक है। तो पहला हम यहाँ पर ग्राफिकली समझ लेते हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है। ये आपका सेल है, ये एक रिहोस्टेट है जिससे हम यहाँ पर करंट को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं इस वायर में। और यहाँ पर उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। आपको पता है मैग्नेटिक नीडल एक सिंपल मैग्नेटिक डायपोल होता है, यानी कि यूँ समझिए एक सिंपल मैग्नेट होता है जो अपने एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट करने के लिए फ्री होता है। यहाँ पर की जब ऑफ है, यानी कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस समय जो है यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही की को यहाँ पर ऑन करते हैं, हम की को ऑन करेंगे तो इसमें आपका सपोज कर लेते हैं इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो करंट फ्लो होने की वजह से जो ये मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो आप खुद सोचिए कि ये मैग्नेटिक नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हुआ। जब करंट ऑफ होता है तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है, जब आपने करंट को ऑन किया तो ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने करंट ऑन किया, कोई ना कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हो गया जो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया। साथ के साथ जब रिहोस्टेट के यूज़ से करंट के अमाउंट को बढ़ाते गए तो जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन था वो बढ़ता गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। ठीक, करंट के डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे इधर देखिए नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक नीडल था वो अपना ओरिएंटेशन चेंज कर ले रहा था। ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि यदि हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन
चेंज हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए देखते हैं क्या कंक्लूजन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाला। व्हेन करंट वाज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ वायर प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल केप्ट डायरेक्टली बिलो द वायर, द नीडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन। जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही आप इसमें करंट ऑन करते हो तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। इट्स ओके। व्हेन करंट वाज रिवर्स थ्रू द वायर, द नीडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अर्लियर केस। मैंने बताया भी था अभी आपको, दूसरे केस में जो करंट का डायरेक्शन चेंज किया गया तो जो नीडल का डिफ्लेक्शन था वो अपोजिट हो गया। इसका मतलब सीधा जाता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से है। इट्स ओके। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर ऑस्टर्ड ने ये बताया कि जहाँ भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। और दो कंक्लूजन इसमें और। पहला कंक्लूजन कि जैसे ही आप करंट ऑन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। करंट के अमाउंट को जब हम बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। और ओके। और दूसरा चीज़ कि अगर हम करंट को रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इनसे मिले। और एक तो ये श्योर हो ही गए कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इट्स ओके। अब बात आती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यदि जनरेट होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होता है। और इसको पता करने के लिए हमारे पास दो सिंपल रूल्स हैं। पहला एम्पियर्स स्विमिंग रूल है, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे इमेज है वहाँ से समझेंगे। इमेजिन अ मैन हु स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। ऐसा सोचिए कि कोई आदमी जो है वो करंट के डायरेक्शन में, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, वो स्विम कर रहा है। इट्स ओके। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फेसिंग अ मैग्नेटिक नीडल। जो ये मैग्नेटिक नीडल है वो आप ऐसे यूँ समझ लीजिए कि नॉर्थ पोल उसके सिर के ओर है और पैर की ओर उसका साउथ है, यानी कि उसका हेड जो है वो नॉर्थ की ओर हो, या यूँ दूसरे शब्द में कहिए कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ स्विम कर रहा हो। इट्स ओके। केप्ट अंडर हिम सच सिचुएशन that current enters his feet and then north pole of the needle will deflected toward his left hand। यानी कि अगर कोई स्विमर है वो स्विम करते हुए जा रहा है तो जो स्विमर होगा, ऐसा समझिए कि उसके फीट से हेड की तरफ करंट फ्लो हो रहा हो, तो जो इसका लेफ्ट हैंड है उधर की तरफ आपका जो है नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन यहाँ दो कंडीशन है, ध्यान रखना है आपको कि जो नॉर्थ पोल वो हमेशा हेड की तरफ हो। अगर आपने पहले ही मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल अगर उसके पैर की तरफ रख दिया तो फिर ये रूल गलत हो जाएगा। तो दो इसमें बातें हैं, करंट का डायरेक्शन और स्विमर हमेशा करंट के डायरेक्शन में स्विम करता हो, और जो मैग्नेटिक नीडल आप रख रहे हैं उसका नॉर्थ पोल हमेशा करंट के अलोंग हो, तो उस सिचुएशन में हमेशा नॉर्थ पोल जो है उसके लेफ्ट हैंड के साइड में डिफ्लेक्ट होगा। इट्स ओके। तो इससे हम बस यही पता कर सकते हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर हम मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो उसका नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर एक्चुअली हम मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होगा, उसके और भी डायमेंशंस के बारे में एनालाइज करना चाहते हैं, तो बेस्ट रूल है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। एक बहुत ही सिंपल रूल है ये। कोई भी स्क्रू लीजिए आप, सिंपल कोई स्क्रू, और उसको जो है आप यूँ समझिए कि स्क्रू ड्राइवर से लगा करके उसको हम टाइट करने वाले हैं। आप जो है कोई वायर हो, जैसे मान लीजिए यही वायर है, इसके अलोंग आपने क्या किया, एक स्क्रू रख दिया, और अगर इसको आप रोटेट कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। यानी कि अगर स्क्रू करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो आपके स्क्रू ड्राइवर के रोटेशन का डायरेक्शन होगा। फिर से समझिए, यदि आपने किसी वायर, जैसे ये वायर है, इस वायर के क्रॉस ऐसे स्क्रू ड्राइवर रख दिया और यहाँ पर आप ऐसे रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर स्क्रू जो है करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एकदम सेम होगा। और आप यदि उसको ओपन करते हो, खोलते हो, करंट का डायरेक्शन यानी डाउनवर्ड है,
तो आप खोलेंगे इधर की तरफ तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्क्रू के रोटेशन के डायरेक्शन में होता है। यानी कि जब भी किसी वायर के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो तो वहाँ पर हम एक स्क्रू रखते हैं और स्क्रू को अगर रोटेट कर रहे हैं हम और करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो जो डायरेक्शन है रोटेशन का वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। लेकिन अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन उल्टा है तो आप उसको खोलेंगे, ओपन करेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो फिर उसका अपोजिट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है, इफ़ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ स्क्रू। इट्स ओके। ये आपका जो है मैक्सवेल कॉर्क्स स्क्रू रूल है। तो इन दोनों रूल्स के हेल्प से जो है मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अगला है आपका एक बहुत ही सिंपल है राइट हैंड थंब रूल या कर्ल रूल भी इसको कहते हैं। जैसे ये मेरा राइट हैंड है और ये कोई कंडक्टर है जिसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे करके पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में है, तो जो हमारे कर्ल फिंगर यानी हमारे हाथ से एंड की तरफ जो टिप्स होंगी इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसा कि यहाँ भी दिखाया हुआ है, ये करंट के डायरेक्शन में थंब है तो हाथ के अंदर से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिखाया हुआ है, अंदर से बाहर की तरफ। इट्स ओके। तो ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने का जो है सबसे बेस्ट जो है राइट हैंड थंब रूल होता है, इसी से हम पता करते हैं। वैसे तो 3 रूल्स बताए हमने, लेकिन सबसे बेस्ट राइट हैंड थंब रूल है। इसके बाद आता है बायो-सेवर्ट लॉ। अब हमें यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि बायो-सेवर्ट लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। आप जानते हैं कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड जो है सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो क्या अब आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि वायर के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूर जाएंगे तो कितना होगा और दूर जाएंगे तो कितना होगा, यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अभी तक तो हम सिर्फ ये जान पाए कि मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा। तो हमें आंसर मिला कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर उसके डायरेक्शन की बात की हमने, उसके लिए भी रूल्स पता लग गया। अब जो है हमें ये जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड यदि होगा तो वो कितना होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड एट अ पॉइंट अराउंड द वायर। तो आपके पास कोई फार्मूला है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जो पता कर दे कि इतना टेस्ला यहाँ होगा, इतने टेस्ला यहाँ होगा? ओके, अभी तक नहीं है हमारे पास। उसी के लिए बायो-सेवर्ट ने कुछ यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल रूल दिया, जैसे हमारे पास कुलाम्स लॉ है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंटल रूल है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इन बायो-सेवर्ट ने किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, देखिए ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड एक पॉइंट P है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक एनालिटिकल फॉर्मूला दिया। तो अब वो फार्मूला क्या है उसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, एक छोटे से पोर्शन, इस पूरे वायर की वजह से नहीं, एक छोटा सा पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है DL, इसकी वजह से P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैरिंग करंट I at a point P, distance R from the element is directly proportional to I. It means the magnetic field at a point P due to the small element DL of a current carrying conductor is directly proportional to the current, directly proportional to the small element DL and directly proportional to sin theta, where theta is the angle between the line joining point P to the wire and small element. It's okay? Here थीटा आपको दिख रहा है, ये नीली लाइन जो दिख रही है इसके और ये स्मॉल एलिमेंट के बीच का एंगल है आपका थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस r है तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन सबको कंबाइन करें तो देखिए dB मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका स्मॉल एलिमेंट DL के। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन सबको कंबाइंड किया जाए तो हमारे पास मिलेगा डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट आ जाता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी में देखा था परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट अपान 4 पाई। इट्स ओके। आइए देखते हैं दिस इज द बायो-सेवर्ट लॉ। जो नीचे दिया हुआ था अभी पीछे वो आपका बायो-सेवर्ट लॉ था, ये जो है आपका बायो-सेवर्ट लॉ है, ठीक ना। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई के वैल्यू के बारे में। आगे इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में होता है, वेक्टर होता है। यहाँ पर साइन थीटा था, साइन थीटा को हम हटाएंगे तो डी एल और आर के बीच जो है क्रॉस प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि आप क्रॉस प्रोडक्ट अगर डी एल क्रॉस आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ डी एल इंटू आर साइन थीटा। जैसे आप जो है यहाँ पे देखिए डी बी इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। आपको पता है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो अभी यहाँ पर डी एल क्रॉस आर क्या होगा, डी एल इंटू आर साइन थीटा। तो इस तरह से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, कुछ नहीं किया गया, साइन थीटा को रिप्लेस करके क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया गया, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा। ओके, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है। इसका जो वैल्यू होता है ये आपको याद रखना है। म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट एंड इट इज दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका यूनिट होता है, या वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स होता है। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फाइंड बाई राइट हैंडेड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल एज डिस्कस्ड अर्लियर। इट्स ओके। दो बातें और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे दिया हुआ है अगर कहीं भी इस तरह का आपको दिख रहा है सर्कल और उसके बीच में डॉट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर ये प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, बाहर की तरफ है। ओके, और ये लिया गया है जैसे आप यूँ समझिए अंदर से एरो बाहर की तरफ आ रहा है तो एरो का टिप दिख रहा है आपको। ओके, दूसरी तरफ आपको ऐसा सिंबल दिखेगा, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, बिकॉज कोई एरो हो तो उसका ये बैक साइड इसी तरह का होता है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन आर इमर्जिंग आउट। इट्स ओके। This magnetic field is a vector quantity, then it has a direction and it is found by right hand thumb rule or Maxwell's screw rule. It's okay. And this is also follow the principle of superposition principle. Hence by using the Biot-Savart law we have to find out the value of magnetic field at a point around the conductor. Thank you. Have a nice